Hi guys, welcome back to my channel. This is me Neha aka Virago, and today we are going to talk about how to build unshakable confidence. I see a lot of individuals, they come to me personally as well, and they tell me that okay, you see confident individual, they are just simply born with it. They are like blessed as if it's a god's gift, etc., etc. But I really want to tell you that this is not the truth. Trust me, the people you see out there who walk like they wear the confidence and they can literally eat you up, or maybe a feeling like such, that comes from practice. Again, I have repeated this in all of my videos and I will repeat this till my last breath, honestly. So confidence comes with practice. It is not a god gift, it is not something you appeared on earth with. Okay, you need to build it up, you need to put in some efforts, and all these crazy good people you see out there, they have also done the same thing. So today in this video we will be talking about the same thing. So we won't be just talking about a confidence that gives you a quick dopamine release, a rush that okay, I feel so amazing. Rather, we will be talking about something that stays with you, that actually makes you conquer out there, that makes you feel that okay, I am genuinely winning in almost every other situation of my life. Okay, so let's start with the basics. What is confidence? Confidence is basically a very, warm feeling that you have inside yourself that, okay, come whatever may, I am going to deal with it and I will be able to deal with it. It is not something that you see in maximum of the people out there who talk very loud, who walk very loud, who, carry themselves in a very loud and dramatic way. That is not confidence. Trust me when I say this. So, a confident person will appear very calm to you, very calm and composed, but the body language itself would tell you, would let you know that the person has a lot inside, and he or she is somebody that is not going to get folded come whatever may. And that is the same thing that we will be talking about, and this comes specifically with three things. Let me tell you, number one is words, number two is actions, and number three is belief. Now these three things has to be in sync, very much on the same page inside yourself. So you cannot be thinking something else, speaking something else, and your actions are totally something else, and then you expect that you will feel confident and amazing कि मैं सब कुछ कर लूंगी, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकती हूँ. Obviously आप नहीं होगे, because these three things has to be on the same page. How? We will talk ahead. Okay, so confidence begins with the first most very important pillar, which is self awareness. So now, and this is something which is, आई ऑलवेज फील कि लोगों को नहीं पता होता है कि उसको एग्जीक्यूशन में कैसे लाना है. सब बोल रहे हैं सेल्फ अवेयर हो जाओ, सेल्फ अवेयर हो जाओ. व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, करना क्या है और होना कैसे है? सो सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी सिंपल. द फर्स्ट थॉट यू नीड टू ब्रिंग इनसाइड योर माइंड इज कि मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान देना है. हाउ एम आई लुकिंग, हाउ एम आई वॉकिंग, हाउ एम आई टॉकिंग, हाउ डू आई इवन स्लीप, द माइन्यूट डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ. द मोमेंट आप उस पर ध्यान देने लगोगे, द वे यू वॉक, टॉक, ईट, स्लीप, n number of such things, you start to get self aware about yourself. और हमें सबसे फर्स्ट स्टेप यही अचीव करना है. आई सी इंडिविजुअल्स आउट देयर, जेन्युइनली उन्हें हर छोटी से छोटी डिटेल अपने बारे में समझ में आ रही होती है. इवन इफ दे आर वॉकिंग ना, जनरली वॉकिंग नॉर्मली, तो उनके हाथ कितने आगे और कितने पीछे जाएंगे इस बारे में भी उनका ध्यान होता है व्हेन दे आर वॉकिंग. सो वी नीड टू गेट इनटू सम डिटेल्स अबाउट इट. सो you can start with the very small thing. For example, you're entering a room and the moment you're sitting down, for example, आप एक चेयर पे बैठ रहे हो. Now how are you going to sit on that chair? आपके हाथ कहाँ रखाएंगे? Where, how much your body is going to bend down a bit, or maybe it is going to be upright itself. That you need to take in count. And when you do such small things, you understand that how important self awareness is and how can you actually execute it. The second part of self awareness is
embracing yourself. So abhi hame pata to chal gaya that what kind of a person we are, the way we are walking, talking, doing a number of activities, we are conscious about us, about ourselves. The next part comes is embracing it. So now I cannot be looking at myself and just thinking in the mirror that, oh, you look so stupid, oh my god, your hair is going here and there, your face is looking so ugly. So you are not supposed to do this, because the moment you do this, now this is a different thing altogether. All you're doing is attracting negativity, and you're also bringing out all the negativity out of yourself. So that is not going to work. So it's very simple. You need to embrace it, whatever it is. Even if you feel कि यार यहाँ ना थोड़ा गंदा लग रहा है कुछ तो, still it's fine. Just embrace it for the time being. We will come to know कि उसको ठीक कैसे करना है. Because you cannot just do a negative self talk rather than thinking कि इसको ठीक कैसे करना है. There is a difference, right? So we will come to the second part, which is fixing it rather than doing the negative self talk. So you know yourself and you simply embrace it, appreciate it. The second pillar is self discipline. Now, this is when we are actually talking. This is the hard part. यहीं पे हमारी 90% of the population out there, it gets dropped off. Why? Because यहाँ लगते हैं guts, real genuine guts. Because now to bring self discipline in your regular and daily lifestyle is the task. एक दिन जल्दी उठना है सुबह, कोई भी उठ जाएगा. एक दिन डाइट करनी है, हेल्दी फूड खाना है, फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स, एवरीथिंग सब कर लेंगे, कोई भी कर सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग इट एवरी सिंगल डे फॉर अ वीक, मे बी for 30 days, maybe for 90 days, maybe, that is where the guts come in, जहां पे आपको genuinely थोड़ी सी मेहनत करनी होती है. बट अगेन मैंने इस पे भी एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, दैट हाउ यू कैन अचीव द डिसिप्लिन इन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स. आई एम नॉट सेइंग दैट यू जस्ट गेट अप वन डे एंड you know say to yourself, you ask yourself that today and from today for the complete year I am going to be getting up at 6 a.m. No, let's not do this. Let's not just simply try to fool around anybody. You can simply set a small goal first of all कि मैं इस हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन जल्दी उठूंगी. कैन वी डू दैट? maybe Monday, then Thursday, then Saturday, it's fine. Next week हम कोशिश करेंगे कि हम 4 दिन जल्दी उठेंगे. So when you take some small steps, and such small steps, you bring in some kind of discipline. और जब एक बार momentum build हो जाता है तो फिर बहुत सुंदर हैं चीजें. So to build the momentum, to build the discipline, self discipline, you need to start small, which is the second pillar of having an unshakable confidence. The third most important pillar is self-respect. So people usually think that self-respect is something which should be, brought in when there is a fight, for example. So how dare you saying me this? How dare you, speaking like this to me? I have a self-respect. Oh my gosh, this is not something. जहाँ self-respect, इस जगह तक self-respect limited नहीं है. Actually, self-respect एग्जिस्ट इन एवरी सिंगल मिनट ऑफ द डे फॉर योर सेल्फ. ऐसा जरूरी नहीं कि कभी कोई लड़ाई हुई तब ही हम उसको बाहर लाएंगे कि ओ आई हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट. यू हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट 24/7. इट इज नॉट नेसेसरी कि एक जगह पर ही है. सो नाउ व्हेन यू थिंक ऑफ योर सेल्फ इन अ वेरी कॉन्शियस, इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, तो यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू गेट कैरीड अवे विथ एनीथिंग और एनी पर्सन. कि इसने बोला कि ब्लैक नहीं व्हाइट तुझ पे अच्छा लगेगा तो मैंने झट से व्हाइट पहन लिया. उसने बोला कि नहीं यार ब्लैक ही अच्छा लग रहा तो मैंने झट से ब्लैक पहन लिया. नो, whatever somebody is going to tell me, or maybe a situation around me is going to tell me, I am going to sit for a minute, for 5 minutes. I am going to give it a conscious thought. I am going to genuinely think about it कि ये कितना सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं. मेरी खुद की भी कुछ एक सोच है, मैं खुद भी कुछ हूं अंदर से. आई ऑल्सो हैव अ स्टैंड, एक स्टैंडर्ड है मेरा भी, जहां से मैं डिसीजन ला सकती हूँ, रादर देन जस्ट लिसनिंग टू समबडी जिसने मुझे बोल दिया कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो. सो वी कैन ब्रिंग इन दैट, एंड दैट हैज टू बी देयर विथ एवरी वन ऑफ यू. अगर नहीं है तो प्लीज आज से इसको जरूर प्रैक्टिस करना कि हमारे खुद के डिसीजन मेकिंग होने चाहिए. बिकॉज वेन यू डू दैट यू हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ. बिकॉज हम क्यों हमेशा सामने वाले को वो डोर दे रहे हैं, द राइट टू टेक द डिसीजन फॉर अस. आरंट यू योरसेल्फ इनफ? And now we are going to talk about the confidence killers. So before you build something, you need to know what are the hurdles out there जो आपको रोक सकते हैं. So the first important thing, जो सबसे पहला hurdle usually आता है, that is overthinking. So overthinking is an amazing kind of luxury that poor people has given themselves. मैं हमेशा ये बोलती हूँ because
ओवर थिंकिंग बहुत बहुत अमेजिंग चीज है, एंड दिस इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज आप कहीं जा रहे थे, आप कहीं से निकले, किसी ने आपको देख के मे बी थोड़ी सी स्माइल पास कर दी और आपको ऐसा लगा कि इसने मुझ पे हंसा। आप अपने घर आ गए, वो अपने घर चला गया, एंड नाउ you two did not know each other. Okay, you total strangers maybe just stumbled upon each other on a road, on a random road, and now you're at your home, that person is in their home, and now you're wondering ki, oh my god, उसने मुझको देख के हंसा। एंड अब आप पूरी नेगेटिविटी से घिर चुके हो। यू आर जजिंग योर सेल्फ, यू आर फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ, यू आर फीलिंग इंफीरियर। आप तो कांच के ही सामने नहीं खड़े हो पा रहे हो, एंड द अदर पर्सन ही आई डोंट नो, उसको पता भी नहीं कि आप एग्जिस्ट भी कर रहे हो अभी भी इस धरती में, बिकॉज ही हैज जस्ट फॉरगॉटन यू। वो दो रास्ता आगे चला एंड ही डज नॉट नो यू एट ऑल। वो भूल चुका है कि आप दिखते भी कैसे थे। बट बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड बबल कॉल्ड एज ओवर थिंकिंग, you have ruined your entire day, your entire energy, your entire thinking, और जो भी प्रोडक्टिविटी उस टाइम पे दिमाग में से थोड़ी भी निकल सकती थी, हमने वो भी ruin up कर दी है। So overthinking is something that I really want to get into people's brain and change it myself कि please stop doing it. It is not going to take you anywhere. कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है ये आप नहीं जानते हो, नंबर वन। नंबर टू, वो सोच ही नहीं रहा यार आपके बारे में। दिस इज द फैक्ट। आप जान के क्या करने वाले हो कि मेरे बारे में क्या, बिकॉज ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। सो प्लीज कम ओवर इट। अदरवाइज सी, कॉन्फिडेंस एंड ओवर थिंकिंग कैन नॉट स्टे इन द सेम रूम। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, एंड सिंस वी ऑल आर हेयर टू लर्न हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, तो आपको डेफिनेटली ओवर थिंकिंग को ही छोड़ना पड़ेगा। द सेकेंड वन इज कंपैरिजन। एक तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ कंपैरिजन और कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स इज कि वो आपको लिमिटेड कर देता है। एटलीस्ट व्हेन यू आर नॉट कंपेयरिंग योरसेल्फ टू एनीबडी, आपके पास में एक एक फ्रीडम होती है टू सी मोर, कि मेरे बाल अगर अभी कर्ली हैं तो शायद वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ओके, बट अगर मेरे सामने कोई और कर्ली बाल वाली लड़की खड़ी है, तो अब मेरा दिमाग इधर जाएगा कि यार काश मेरे बाल भी इतने कर्ली होते। तो मैंने सबसे पहले एक लिमिट सेट कर दी, एक बैरियर लगा दिया है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज डिवास्टेटिंग इन माई आईज, क्योंकि आप ह्यूमन हो, वो भी ह्यूमन ही है यार। यू हैव योर ओन पोटेंशियल। हम क्यों लिमिट कर रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट? सिंपली जस्ट स्टे योर सेल्फ ना। देर इज नो नीड टू कंपेयर। मैं आज नहीं करती कंपेयर खुद को किसी से यार। आई डोंट फील लाइक कि ओ आई वांट टू बी लाइक हर और आई वांट टू बी लाइक हिम, वैसी बॉडी चाहिए, ऐसे बात करना। इट डजंट मैटर। आई एम वेरी गुड इन माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट आउट देयर, खत्म बात। सो द मोमेंट यू स्टार्ट कैरिंग दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, तो अपने आप ही जो कंपैरिजन वाला फैक्टर है ये ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, और हमें यही करना है। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अगेन either confidence or comparison, both of them cannot stay in the same plate. किसी एक को भगाना पड़ेगा. So let's do this for the comparison part, please. The third, again another favorite part for me of this video, is नेगेटिव सेल्फ टॉक, जिसकी हमने थोड़ी सी बात अभी वीडियो में कुछ पहले लाइंस में करी है। नाउ नेगेटिव सेल्फ टॉक इज समथिंग जिसमें मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, आपने सुना होगा, एग्जैक्टली वो डिफाइन करता है। बिकॉज you are, I don't know if you're aware or not यार, words में बहुत पावर है। एक्चुअली वर्ड्स में ही सारी पावर है। पीपल आर स्टूपिड इन माई आईज इफ दे फील कि बोलने से कुछ नहीं होता, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, सिर्फ बोल के कुछ नहीं, बोल के ही सब कुछ होता है। लेट मी टेल दिस टू यू, people out there, really great and great minds out there, they have written books on manifestations, they've written books on positive self-talk, having a positive energy at least around yourself. कुछ नहीं, चलो अंदर भी नहीं अच्छा लग रहा, एटलीस्ट बोलो तो पॉजिटिव अपने बारे में कि अरे आज गिर पड़ी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो हुआ ठीक हुआ, अच्छा होगा, अभी फटाक से ठीक हो जाऊंगी। एटलीस्ट यू कैन टॉक पॉजिटिवली। आई नो पीपल, वो उनको थोड़ा सा भी कुछ इशू आता है, इतना सा भी, अरे मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो पता नहीं भगवान ने क्या बैठ के किस टाइम पे किस्मत लिखी। नो, it is not true. Why are you doing this to yourself? You should not actually, because when you do this ना, again आपने खुद अपने हाथ से सारा ruin up कर लिया है। इतनी तो खराब होगी भी नहीं जितनी आपने खुद ही खराब कर ली है। So please avoid this thing. Negative self-talk is the most toxic and poisonous thing that exists in here. आपको लग रहा है आप उतने अच्छे नहीं हो, बोलो मत। Let's start working on it rather than speaking कि मेरी किस्मत खराब है। ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे अच्छे से बोलते नहीं आता, बोलना सीखना स्टार्ट कर देते हैं।
मुझे ठीक से चलते नहीं आता, अच्छे से चलना स्टार्ट कर देते हैं. Rather than putting that energy in saying negativity, utilize करते हैं in doing something positive. That will definitely help. And now I'm going to tell you 5 practices, 5 small practices that you should do daily so that you can, have some small wins in your life. And when you feel those wins incoming actually being executed, you will actually be feeling that, okay, something inside me is changing, or this is how you will achieve your end goal, which is the unshakable confidence. क्योंकि छोटी छोटी स्टेप्स लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं. इफ यू थिंक कि मैं आज एक दवाई खा के सो जाऊं और कल उठ के एकदम परफेक्ट हो जाऊं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो यू नीड टू पुट इन सम एफर्ट्स एवरी डे. सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज a positive self talk. Okay, so the moment you start your day, आप उठे, बेड से उतरे, move towards the mirror, start speaking to yourself that, okay, good morning, we are doing very good and we are blessed, it's a good day कि हम आज उठ भी पाए हैं, we are alive, because a lot of people, they don't even get to see the day. Okay, and now whatever is going to come today in my life, I am going to handle it up. Simple. आप चाहो तो हिंदी में बोल सकते हो कि आज जो भी होगा दिन में, मैं उसके साथ डील कर सकती हूँ, कर सकता हूँ. सिंपल एज दैट. आपको उस टाइम पे शायद थोड़ा वियर्ड लगे, बट अभी अंदर क्या फील हो रहा है ना, उसको थोड़ा होल्ड पे डालना है. प्लीज लेट्स नॉट गिव so much of self importance to yourself every time. Please, let's drop that thing. Just simply say, कांच के सामने खड़े होके, एंड ट्रस्ट मी, डू दिस फॉर 1 week. 8th डे पे आपको खुद को लगेगा कि भाई दिस इज रियली अमेजिंग एंड दिस इज वर्किंग. ओके, बिकॉज आप एक दवाई भी खाते हो तो अंदर देख नहीं रहे हो ना कि वो कहाँ गई, बट यू कैन सी अगर कोई वुंड है तो उस पर इफेक्ट आपको दिखने लगता है कि ये ठीक हो गया है. दिस इज द सेम थिंग. यू नीड टू ईट दिस पिल एवरी डे. आप उठो सुबह, गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड जस्ट से, it's a good day, I am blessed, and from today, actually today itself, आज जो भी चीज मेरे सामने आएगी, whatever situation, I am going to deal with it and I will be able to handle it. Very simple. Why to wait for others to hype you? Be your own hype source. The second one is eye contact. So now you need to take in charge of this. आप किसी भी इंसान से मिलो इस हफ्ते में, take a decision. I am going to meet anybody for this whole week. I am going to make some eye contact. भले 2 सेकंड के लिए मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करूंगी, but I will be doing, and you will actually see कि the moment you are talking to somebody straight into their eyes ना, आपकी body language automatically shift हो जाएगी, because eyes hold a lot of energy. बहुत energy होती है जब आप किसी से एकदम आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, because that genuinely gives you, ऑटोमेटिकली आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा अंदर से कि यार मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, एंड आई फील लाइक आई कैन टॉक द सेम वे फॉर मे बी 1 more minute, 2 more minute, 5 more minutes. बट अगर आप पूरे टाइम इधर उधर देखते रहोगे तो आपके एक्सप्रेशंस एक तो बदलते रहेंगे, जो आपको पूरी फीलिंग देंगे कि यार बहुत इंफीरियर सा और अनकंफर्टेबल, और आप सोचोगे कि बस मुझे इस कॉन्वर्जेशन से भगा दो, कुछ भी करके ये सामने वाला फटाक से भाग जाए. भले से सामने वाला सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है दैट, हाय नेहा, हाउ आर यू, कैसे चल रहा है काम, पढ़ाई कैसी चल रही है, क्लासेस कैसी चल रही है, वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस कर रहा है, बट यू विल फील लाइक, ओ माय गॉड, इसने मुझे क्या पूछ लिया. सो रादर देन डूइंग दिस, सिंपली ट्राई टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट एंड देन रिप्लाई कि आई एम गुड, काम अच्छा चल रहा है, क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, एंड देन मे बी यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. वी विल गेट टू दैट इन अनदर वीडियो, बट आई कॉन्टैक्ट पे प्लीज फोकस कीजिए. एंड टू स्टार्ट विथ, आप मिरर में खड़े होकर खुद से आई कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो. दैट इज द बेस्ट, क्योंकि वहां आपको कोई नहीं देख रहा है, इट्स जस्ट यू एंड योर सेल्फ. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, और फिर हम वीक में जिससे भी मिले उनके साथ 2-3 सेकंड का भी आई कॉन्टैक्ट से स्टार्ट करेंगे. यू विल सी द शिफ्ट्स इनसाइड योर सेल्फ 100% हैपनिंग. द थर्ड इज स्मॉल विन्स जर्नल. थोड़ी सी हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी लिखने की, थोड़ी थोड़ी. सो आज मैंने कोशिश करी कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगी और रनिंग करने जाऊंगी. मेरा फर्स्ट एफर्ट था दैट आई विल गेट अप एट 5 AM. ओके, बट चलो मैं नहीं उठ पाई, तो ना मैं 5 बजे उठ पाई और ना मैं रनिंग करने जा पाई. आई विल स्टिल सिट इन द नाइट विद अ डायरी, विद अ पेन, एंड आई विल राइट कि एटलीस्ट मैंने सोचा था और मैंने एफर्ट तो लगाया था कि यार काश मैं उठ जाऊं फटाक से. एटलीस्ट आई डिड पुट एन अलार्म, कम से कम इतना तो करा था मैंने कि अलार्म लगाया था. आई वॉज नॉट स्लीपिंग लाइक ऑल केयरलेस कि ठीक है नहीं लगा अलार्म अब छोड़ो. एफर्ट तो था. सो एटलीस्ट अबाउट द एफर्ट यू कैन राइट दैट, ओके, आई ट्राइड टू डू दिस टुडे, आई कुडंट. इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिखना जरूरी है, क्योंकि कितने दिन आप ये लिखोगे कि मैं आज उठने वाली थी बट मैं नहीं उठ पाई.
ट्रस्ट मी, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, छठे दिन आप रात में यही लिख के सोओगे दैट आई गॉट अप टुडे, आई वेंट फॉर अ वेरी गुड रन टुडे. यू विल बी डूइंग दिस. और जब ऐसे छोटे छोटे विन्स हमको मिलेंगे, स्पेशली इन रिटन फॉर्मेट, यू विल बी एबल टू सी कि मैं 3 दिन पहले कहाँ थी और आज 6th डे पे मैं कहाँ खड़ी हूँ. यू आर गोइंग टू फील कॉन्फिडेंट. देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आपको कॉन्फिडेंट फील ना हो. The fourth one is body language awareness. It's a request to, even if you're a male or you're a female, you're a kid, you're a mom, dad, maybe grandfather, mother, जो भी आप हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, the moment आप बाहर कहीं जाने वाले हो, आप रेडी वगैरह हो रहे हो या आपको बस बाहर जाना है, even if it is for a walk, आपको खुद वॉक के लिए जाना है, आपको आपके डॉग को ले जाना है, आपको दूध लेने जाना है, आपको कुछ भी करने जाना है बाहर, the moment you have to go out, please, before stepping out of your room, your home, go to your room, in front of the mirror, stand over there. आप खुद को एक बार देखो. How are you standing? कांच के सामने भी. Try to fix your shoulders, your chin, your chest, your back, and then you move out. Because आप काउच पर बैठे हो पूरी रिलैक्स्ड पोजिशन में, आप वैसे ही उठे और आप वैसे ही उठ के चल दिए ऐसे बिल्कुल कैजुअल लाइक दिस, नो. बिकॉज आई नो दिस, मैं अगर कुछ भी छोटा काम भी करने जाती हूँ, इवन इफ आई एम इन माई रूम एंड माई मॉम कॉल्स मी फ्रॉम द हॉल और फ्रॉम द किचन कि बाहर आना जरा, आई गो टू द मिरर फर्स्ट टू सी कि मैं थोड़ी ठीक ठाक लग रही हूँ या नहीं. सो यू कैन कॉल दिस एन ऑब्सेशन, बट ये अब मेरे प्रैक्टिस में इतना ज्यादा आ गया है कि अगर मुझे मेरे बेड से उतर के कहीं भी बाहर जाना है, so I have to see myself once in the mirror whether I am looking fine or not. I'm not saying कि मैं बहुत amazing दिख रही हूँ या नहीं, but you should be looking at least fine, up to the mark, ठीक ठाक, negative नहीं. You should not look dull. That is the only thing. So whenever you are going out, go into the mirror once. उस बाहर जाने के पहले एक बार कांच के सामने आप जाओ, watch yourself out. How are you looking? बाल वाल ठीक है या नहीं? And consciously खड़े होके in 5 seconds fix your chest, fix your back, pull up your shoulders, चिन ठीक कीजिए and then you move out. फिर आप उसके बाद उसको मेंटेन कर लोगे. Do this for 5 days. 6th day you will automatically be having in this thing in your brains कि मुझे अगर बाहर जाना है तो मुझे ऐसे जाना है. And the 5th one is try to do something uncomfortable every day. Maybe talking to a stranger, maybe recording yourself in front of a camera. In fact, बहुत सारे लोगों के लिए तो ये भी एक uncomfortable task हो सकता है that, you know, standing in front of the mirror and talking to yourself, अपना body language ठीक करना, डायरी लेके रोज रात में बैठ के कुछ लिखना, ये भी अनकंफर्टेबल टास्क्स में से एक में आता है. सो यू नो नीड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स कि अब आज मैं एक बार बहुत दूर तक दौड़ के आऊंगी जस्ट टू फील अनकंफर्टेबल. नो, इट्स टोटली फाइन. डू द सिंपल थिंग्स. आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आज मैं पूरा आराम से रिलैक्स होके बैठने की जगह आई विल बी सिटिंग स्ट्रेट फॉर लाइक 5 minutes. ये भी एक अनकंफर्टेबल टास्क है. यू कैन टोटली स्टार्ट विद दिस. सो डू समथिंग लाइक दिस एवरी डे. एंड even if you're involved in some meetings, agar aap office jate ho, school jate ho, so you can just raise up your hand, ask a question, you know. Even if you're in a meeting, you can just unmute yourself and say that, okay, excuse me, I have a question. So try to come out a bit. जिस भी जोन में अभी हो, जिस भी एनर्जी से भी सराउंडेड हो, उसको थोड़ा सा ब्रेक करके बाहर आने की कोशिश करो, ईदर ऑन जस्ट एनर्जी लेवल्स और फिजिकल लेवल एज वेल. अगर फिजिकल लेवल पे करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी किक-एस थिंग. सो कोशिश यही करनी है कि जितना हो सके फिजिकली भी बाहर निकलना है. ट्राई टू राइट, ट्राई टू स्पीक विद योरसेल्फ इनटू द मिरर, ट्राई टू डू द बॉडी लैंग्वेज पार्ट दैट आई टोल्ड यू. Do all these things and you will see literally in no time you are able to move out like anything, talk to anybody any point of the day, any point of the time, और आप बिल्कुल perfectly पूरी freedom के साथ, पूरे confidence के साथ, which was the end goal, the unshakable confidence. Now this is something that stays with you because अब आपको do's भी पता है कि क्या करना है, don'ts भी पता है कि क्या नहीं करना है. When you take these things into action, balance करके, definitely you're going. So remember, confidence isn't about being perfect. Confidence is about being present, being aware of yourself, doing the things that I told you every single day. It is being very much into the moment, doing the things that are right, and definitely not doing the things that are wrong. Simple as that. If this video added any of the values for yourself, maybe anybody around you,
डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट अप विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप अपने सर्कल में किसी को भी जानते हो जिसको मे बी इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, या कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस को लेके, बॉडी लैंग्वेज को लेके किसी भी तरह से अपनी लाइफ में सफर कर रहा है, please share it with them. It will help them a lot. Trust me on that. And do subscribe to Virago Mode. Press the bell icon as well. See you in the next video.